ایک قیدی کہتا ہے اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ تمہارے ایبسولوٹلی ناٹ سے پہلے صدر زرداری نے لات مار کر غیر ملکی اڈے بند کرائے۔ بھٹو نے جان دی مگر قومی مفاد پر سمجھوتا نہیں کیا۔ بلاول بھٹو کا دیامر میں انتخابی جلسے سے خطاب، بولے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہٹائی جاتی تو دیامر بھاشا ڈیم مکمل ہو چکا ہوتا۔ شہباز شریف کو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنایا، اب شہباز پیٹ دکھائیں، جلد سے جلد ڈیم مکمل کرائیں۔ صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دی، سی پیک نہیں لاتے تو یہ کیسے اورنج ٹرین بناتے۔ بلاول بھٹو نے مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، کہا کچھ سیاسی پارٹیاں الیکشن مینجمنٹ کے چکر میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ گلگت بلتستان میں مخالفین کے دفاتر خالی پڑے ہیں، 7 جون کو عوام تیر پر ٹھپا لگا کر جیالہ وزیر اعلیٰ لائیں۔ کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو حقوق نہیں دے گا، کیا کسی نے کبھی تحفے میں آزادی دی ہے؟ 420 وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا، اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے۔ اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو؟ سیاسی جماعتیں جن کا عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائے، اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کروائے۔ زرداری کا حکومت ایک سازش کے تحت 2013 میں RO الیکشن کے ذریعے زبردستی ختم نہیں کروایا جاتا تو آج تک یہ دیامر بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا۔ اسپیک لاہور میں سنا ہے، ہم نے 2 دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، ذرا میرے دیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز اسپیک دکھائے اور جلد از جلد یہ دیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کرتے ہیں۔ حکومت اتحاد میں درار، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئے۔ بلاول بھٹو کا 18ویں ترمیم پر اسلام آباد کو صوبوں کا حق میں تسلیم کرنے کا مشورہ۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اختیارات کے ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے۔ بلاول جن باتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ سب کراچی میں ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ کراچی کو چلانا ہے تو الگ بلدیاتی نظام دینا ہوگا۔ بلاول بھٹو کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش ناکام بنانے کے بیان پر رانا ثناء نے جواب دیا، BISP میں بے پناہ کرپشن ہے، صوبوں کو اگر 58% حصہ لینا ہے تو سوشل ویلفیئر کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی۔ جو 18ویں ترمیم کے اختیار صوبہ سندھ کے پاس ہے، صوبہ پنجاب کے پاس ہے، جب تک اسلام آباد مانے گا نہیں تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا نہ اسلام آباد ترقی کرے گا۔ 18ویں ترمیم یہاں پہ صوبوں کو کچھ اختیارات دیتی ہے، وہاں پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہاں پہ جا کے صرف تقریر کرنے سے تو فنڈز میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ ان کو یہ پہلا ماننا پڑے گا کہ یہ زمین آپ کا، یہ وسائل آپ کے، یہ معدنیات آپ کے، یہ اثاثے آپ۔ اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو؟ وہ اپنی تقریر میں جو وہ تانا پرائم منسٹر کو یا اسلام آباد کو دے رہے ہیں، اگر کراچی کو سامنے رکھا جائے تو وہ ساری چیزیں وہ ان کی طرف آتی ہیں۔ آپ کو یا تو بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنا ہوگا یا صوبوں کی انتظامی تقسیم کی بنیاد کے اوپر ڈویژن کرنی ہوگی اور چھوٹے انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے۔ بدقسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، سیاسی جماعتیں ایسے ہیں، وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو۔ یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گے۔ بے نظیر انکم سکیم میں ایک تو پنجاب کی حد تک میں بات کروں گا، اس کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے، بے پناہ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ اس آنے والے بجٹ میں وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو۔ کو بیکاری بنانے والی بات ہے، 2 چیزیں جو ہیں وہ نوشتہ دیوار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سوشل ویلفیئر اور اس طرح کے پروگرامز ہیں، یہ صوبوں نے اگر 58% حصہ لینا ہے تو یہ ذمہ داری بھی ان کو اٹھانی پڑے گی۔ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خزانہ مزمل حسن نے بانی PTI سے ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بانی PTI اور جماعت کے سرپرست اعلیٰ کی بجٹ سے متعلق ہدایات اور رہنمائی انتہائی ضروری ہے، اسی لیے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں ان سے مشاورتی ملاقات ناگزیر ہے۔
दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों पर दरख्वास्त गुजारों को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और मुतल्लिका हुकाम को मुलाकात का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया जाए। कौमी असम्बली बजट इजलास में पीटीआई धरना देगी या नहीं, सुहेल आफरीदी और शेख वकास अकरम आमने सामने आ गए। गुज़श्ता रोज शेख वकास अकरम ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में कहा था, एहतजाज का ऐलान सुहेल आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की मुशावरत से किया है तो सर आंखों पर है, लेकिन पार्टी क़यादत ने धरने का MNAs को नहीं बताया। पहले भी ऐसा हुआ है, कुछ दोस्त ऐलान कर देते हैं जिसका पार्टी भरम रखती है। शेख वकास के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, शेख वकास अकरम 10 जून के धरने में आ सकते हैं तो आएँ, किसी के आला-ए-कार न बने। KP हुकूमत के फैसले करने में आज़ाद हूँ। कौमी असम्बली बजट इजलास के मौके पर गेट के सामने धरना होगा। अबलस वक्त होगा कि पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि जब तक सीएम साहब की और मुशीर खजाना की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, KPK का बजट प्रेजेंट या पास नहीं होगा। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस किस्म का पार्टी की सतह पे सलमान अकरम राजा साहब या पॉलिटिकल कमेटी या गौर साहब की तरफ से इस किस्म का कोई फैसला कम से कम इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं किया गया। पटिशन भी दायर कर रहे हैं सीएम साहब इसी हवाले से, उन्होंने खुद कहा वरना 10 जून को धरना देने का कह रहे हैं। इसकी कोई डिटेल्स तय हुई है कि अगर पहले भी कई दफा ऐसे होता है कि हमारे कुछ दोस्त ऐलान कर देते हैं और फिर पार्टी सबके भरम रखती है। बात जब आप नेशनल असेंबली की बात करेंगे और नेशनल असेंबली के MNAs की बात करेंगे तो उसमें जो रेलिवेंट लोग हैं वो अगेन एक्टिंग चेयरमैन गौहर, सलमान राजा, चीफ डोगर एंड पार्लिमानी लीडर जो है खटक जो है, ये 3-4 रेलिवेंट लोग हैं जो कि MNAs को ये कन्वे कर सकते हैं कि आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो कोई धरना देना है या को आपने पार्लियामेंट के बाद कोई धरना देना है। अगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है सुहेल आफरीदी साहब, उनकी राजा साहब से या गौर साहब से कोई बात हो गई है और उनकी मुशावरत से उन्होंने ये ऐलान किया है तो वो पार्टी के सर आंखों पे है एंड आई एम श्योर कि उन्होंने कोई मुशावरत की होगी। मगर बहरहाल अभी तक ऑफिशियली दोनों साहिबान ने जो सेक्रेटरी जनरल साहब है और जो एक्टिंग चेयरमैन साहब है या आमिर डोगर और शायद खटक साहब, इनमें से किसी ने भी MNAs को नेशनल असेंबली में कन्वे नहीं किया कि इस किस्म का कोई धरना होने जा रहा है। 10 तारीख को कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि कोई मुशावरत नहीं की गई धरने के हवाले से। बाज भाई ऐलान कर देते हैं, फिर भरम रखने के लिए हम भी फिर उसको भरम पूरा करते हैं। अभी कोई मुशावरत नहीं हुई इस हवाले से, आपने खुद ही ऐलान कर दिया था। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का जो वहाँ की हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फैसलों में मैं आज़ाद हूँ। और दूसरा जो है शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करें। ये MPAs की उन्होंने कहा कि एहतजाज करवाएंगे, MPAs आएंगे खैबर पख्तूनख्वा। इसमें MNAs भी आएंगे, सारे MNAs। अगर शेख वकास को जो है वो नहीं आना तो वो बेशक ना आए, वो नहीं आ सकते ना आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और PP वफ़द में मुलाकात, बजट पर इख्तलाफात बरकरार। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुलाकात में पेशरफ्त ना हो सकी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मामला सीनियर क़यादत की सतह पर ज़ेर बहस आएगा। इसहाक डार आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में बजट पर डेडलॉक। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की कमेटी को बजट पर हतमी फैसले से रोक दिया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे जहांगीर खान से, बताएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के जराए बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने बजट पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर हुकूमत से बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बिलावल भुट्टो के फैसले से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। जराए के मुताबिक बिलावल भुट्टो 6 जून को गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत जो हुकूमत की बजट टीम है उनसे मुलाकातों का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध बजट कमेटी के जो अरकान हैं वो मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की मुआवनत करेंगे। इस ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई है। इसके साथ साथ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को बजट मुलतवी करने का पैगाम भिजवाया था, क्योंकि GB के इलेक्शन के दौरान बजट पेश करने पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज़ थे। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को टैक्सेस के नफाज, PSDP से मुतल्लिक सूबाई जो शेयर्स हैं और पेट्रोलियम लेवी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी मज़ीद टैक्सेस लगाने और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ है। ज़राए के मुताबिक ठीक है, जहांगीर खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है 10 जून को बामकसद बजट पेश करेंगे। IMF, इत्तेहादी हुकूमत और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। पूरी कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। टैक्स नेट वसी करके वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 12 नशिस्तों के खात्मे पर इत्तेफाक ना हो सका। एलामिया में कहा गया है मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर की कुर्बानियां तहरीक आज़ादी तकमील पाकिस्तान का रोशन बाब है। मुहाजिर नशिस्तों से मुतालिक ज़रूरी इस्लाहात आईन कानून के मुताबिक असम्बली से हो सकती हैं। आईनी इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। एलामिया में तमाम सियासी और समाजी कुव्वतों पर बर्दाश्त, मुकालमे और पुरअमन सियासी जद्दोजहद को फ़रोग देने पर जोर दिया गया। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ने आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। अवामी एक्शन कमेटी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई लेकिन वो शरीक नहीं हुए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अमेरिका से मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल हैं। तेहरान एटमी हथियार न रखने पर राजी हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। टीवी इंटरव्यू में कहा मुश्तबा खामनाई मुज़ाकराती अमल की निगरानी और हर फैसले की मंजूरी दे रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने आमादगी जाहिर की है उनका मुल्क एटमी हथियार नहीं बनाएगा। एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा मुमकिन है वो कभी ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से सख्त लहजे में बात की भी तस्दीक कर दी। बताया लेबनान पर मुसलसल हमलों के बायस वो परेशान थे। नेतन्याहू से कहा यह इसराइल से मुतालिक है, गालिबन सबसे पहले वही निशाना बनते, अगर वो ना होते तो उस वक्त इसराइल का कोई वजूद ना होता। Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians? I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point. They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon. Have they? Oh, yeah. They've agreed to that. I mean, now they can change their mind, but that was one of the things they had to agree. They've agreed to that. Which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. The point is that maybe we got to stop this. That pertains to Israel because they probably would have been the first one to get hit. There would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel. अमेरिकी सदर ट्रंप ने आपको पागल कहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू सहाफ़ी के सवाल पर हंस पड़े। दबे लफ्ज़ों में अमेरिकी मीडिया की खबर की तस्दीक कर दी। बोले बातचीत की तफसील नहीं बता सकता, बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। President confirmed that he said crazy. How did you react to that? Well, I'm not going to get into details of our conversation. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. We do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have common action. कुवैत पर ईरान के हमलों में एक भारतीय हलाक और 63 अफराद ज़ख्मी। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कुवैती फ़ौज का कहना है ईरान ने बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हमला किया। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा जिससे जानी और माली नुकसान हुआ। कुवैत ने ईरानी सिफारत खाने के 2 अहलकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए उन्हें फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिफारतकारों को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ना होगा। अमेरिका के ईरानी जजीरे कश्म में फौजी तंसीबात पर हमले। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टर पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत करार दे दिया। कहा अमरीकी फोर्सेज ने हमले नाकाम बना दिए। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस को तड़ियां लगाने, कानून को चैलेंज करने वाली अनमोल और पिंकी का हुलिया ही तब्दील हो गया। जेल मुंतकिली के बाद की तस्वीरें आवाज़ न्यूज़ पर। ज़राए का कहना है पहली बार लंबे अरसे तक जेल में रहने के बायस पिंकी परेशान है। पुलिस ने पिंकी के सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी।
بتایا سہولت کار ذیشان اور سہیل کے مختلف اکاؤنٹ سے رقم منتقل کی جاتی ہے۔ انمول پنکی شہر بھر میں کروڑوں روپے کی منشیات فروخت کرتی ہے۔ بینک اکاؤنٹ ذیشان اور سہیل آپریٹ کرتے تھے۔ عدالت نے کہا ملزمہ کی فزیکل کسٹڈی کی ضرورت نہیں، جب بھی عدالت طلب کرے ملزمہ کو پیش کیا جائے۔